Hello everyone, welcome back to Paji classes. Here we are back again with a new video relevant with the ICR method of finding velocities of various mechanism, or we can also say velocity analysis by ICR method. So here we have a question related to that topic, that if for this given mechanism the length of this mechanisms are provided and a schematic view of this mechanism is provided, you have to find the velocity of the slider BD and then the angular velocity of link CD and AB. Given that the angular velocity, not the angular velocity but the rotational velocity of link OA as 60 rpm and in clockwise manner. So we have to use ICR method to find these things, and also we have to find the absolute velocity of point C. So let's see how to solve this question. So first of all, you need your drawing sheet, your clips, and light and dark pencils, and also a scale, eraser, and if possible a calculator also. So before starting to draw this drawing on a sheet, I would prefer you to have a proper scaling in your mind and proper orientation of your sheet. Like I have kept it in a landscape mode, so you need not to draw at portrait or landscape specifically. You can draw as per your choice. The place where you get maximum space, or the orientation in which you get the maximum space, is the right orientation for you to draw. Don't see that if our name is being labeled in the portrait mode or landscape mode, we will draw our drawing in landscape or portrait mode, because in this ICR method, when you plot instantaneous centers which are not fixed nor permanent, then you need to sketch an imaginary lines which may be long enough, which can't be plotted on a drawing sheet, and in examination you may lose your time to redraw the entire mechanism and all that stuff. So हिंदी में बात करते हैं. मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आई गेस कि मेजॉरिटी viewers are comfortable in Hindi, so I shall speak in Hindi. Okay, so let's try to solve it in one go only. हम ये कोशिश करेंगे कि ये ICRs जो हैं इस शीट के बाहर ना जाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू टू गेट एन आइडिया कि मेरे ICRs बाहर ना जाएं, तो आप इस मैकेनिज़्म को ही आराम से गौर से देखिए. इफ़ यू कैन सी माई कर्सर, सो ये लिंक CD, दिस वन which is connected to this certain piston, will have an ICR with respect to this link AB on an axis which is very very far away in this direction. You can see the inclination of this link, and if you wish to calculate the ICR of सो वी कैन गेट एन आइडिया कि यहाँ पर अगर मैं लिंक CD और AB के बीच में कोई से भी ICRs को अगर निकालने बैठूँगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा ICR होगा ही जो इस B से पास होने वाले जो इस B के हॉरिजॉन्टल मोशन के करके जो इन्फिनिटी पे ICR बन रहा है उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा एंड फर्दर एक ICR बनाएगा वहाँ पर भी. तो इन्फिनिटी पे अगर B का ICR है और लेट से CD का कहीं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इनफाइनाइटली स्ट्रेन लाइन पे उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. तो 10 यहाँ से ड्राइंग एक्सटेंड होगा, तो यानी कि ये जो ड्राइंग है ये ऊपर की तरफ ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है, नीचे की तरफ कम से कम होने वाला है, बिकॉज नीचे की तरफ ऐसा कोई लिंक नहीं है. तो ऊपर ही और साइड वाइज थोड़ा एक्सटेंड होगा. तो हमें अपनी शीट के हिसाब से एकदम इसके मिडल में ही बनाना चाहिए, जहाँ पर हमारा B लिंक इस साइड पर आ जाएगा, O लिंक कहीं यहाँ पर आ जाएगा एंड D लिंक कहीं यहाँ पर आ जाएगा. D से नीचे नहीं जाने वाला, कुछ ऊपर ऊपर ही होने वाला मेजॉरिटी चीज़ें. ये अंदाज़ा कब लगेगा आपको, जब आप एक दो ड्राइंग खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे. या तो सोल्यूशन देख देख के कर लीजिएगा, या फिर आप अपने हिसाब से देख लेना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ड्रॉ करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो आपको जो अपने लिंक्स ड्रॉ करने हैं, तो पहले तो आपको प्रॉपर स्केमेटिक डायग्राम को ऑब्जर्व करके ही बनाना है, पर आपको स्केलिंग कर लेनी है सबसे पहले. तो यहाँ पर हम स्केल्स लिख देते हैं.
सो द होप सो आपको ये विजिबल हो या सो द स्केल आई एम यूजिंग इज 1 centimeter is equals to 0.1 meter. क्योंकि यहाँ पर मेरे मीटर्स में डायमेंशन दिया है, स्केल से मैं सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहा हूँ, सो 1 centimeter विल बी इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. सो एग्जामिनर भी इस डिस्टेंस को डेफिनेटली मेज़र करके ही आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगा, तो आपको ये चीज़ करनी है. चलो 5 मिनट हमने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन ले लिया स्केच करने से पहले, अब थोड़ा फास्टर पेस पे ड्रा करते हैं. तो एक और टिप है कि यहाँ पर जब भी आप ड्राइंग बनाना शुरू करें मैकेनिज्म का, तो आप फिक्स्ड लिंक से ड्रॉ करना शुरू करें, उस लिंक से ड्रॉ करें जहाँ पर आपको उसका ओरिएंटेशन दिया हो, डायरेक्शन दिया हो, या फिर कह सकते हैं सिंपल शब्दों में एंगल दिया हो और लेंथ दिया हो, और साथ में वो फिक्स्ड पॉइंट भी हो. तो यहाँ पर लिंक ओ ए मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ओ ए के हॉरिजॉन्टल के साथ जो है एंगल मुझे प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन में. सो अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मैं उसे यहाँ पर ड्रॉ करूँगा. तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पर एक इमेजिनरी पॉइंट ओ को ले लेते हैं, एंड फर्दर आपको जो भी स्केच करना है यहाँ पर लाइट पेंसिल से कर लीजिए. जो फिक्सड पॉइंट हमें बनाना है राइट, उसके लिए ठीक है सर. अब इनिशियली क्या है ना, आपको ये कोशिश करना है कि आप जितना लाइट हो सके उतना लाइट ड्रॉ करना है. इनकेस अगर आपसे गलती हो जाए तो मिटाते वक्त शीट डार्क नहीं हो जानी चाहिए. सो इनिशियली हम डार्क पेंसिल का यूज़ अवॉइड ही करेंगे. जहाँ जहाँ पर हमें एक ही बार में लिखना होता है, ऐसे स्केल एक ही बार में लिख के ख़त्म करना है, तो वहाँ डार्क का यूज़ कर लिया. अदरवाइज सिर्फ लाइट पेंसिल का ही इनिशियली आप यूज़ करें, ताकि अगर कुछ मिटाना हो तो आपका ज़्यादा शीट मतलब ख़राब ना हो. क्या आपको विजिबल है क्या? मैंने शायद से ज़्यादा ही नीचे बना दिया. ओके. तो यहाँ पर रिमेनिंग स्केच को अब हम ड्रॉ करेंगे. इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ-साथ. अब हमें यहाँ पर अपने स्केल के ओरिएंटेशन पे भी ध्यान देना है. हम यहाँ पर अपने नॉर्मल रूलर स्केल से बना रहे हैं इसको, बट ड्राफ्टर का हमें रेलेवेंटली यूज़ करना है. यहाँ पर हमने नहीं किया, बट आपको इसी का यूज़ करना है, मतलब ड्राफ्टर का यूज़ करना है. सो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंट ओ से, ताकि हम क्या कर सकें, बाकी के जो रिमेनिंग लिंक्स हैं उनको ड्रॉ कर सकें. हम यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर ले लिया है, तो प्रोटेक्टर से हम 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर मार्क कर देंगे. तो ये मार्किंग हो चुकी है. अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो लिंक ओ ए का लेंथ है, जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हमें 0.3 मीटर, तो हमारे स्केल के हिसाब से ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग. तो 3 सेंटीमीटर्स का होने के बाद अब हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे 45 डिग्री एंगल पर, जहाँ पर अब हमें, तो हाँ, यहाँ पर फिर अभी हम स्केल से इसको ड्रॉ कर देंगे. सो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लाइन जो है 45 डिग्री एंगल पर ही रहे, मतलब आपको एक्यूरेटली एंगल को यहाँ पर मार्क करना है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरा सर बीच में आ गया था अगेन. अब इसके बाद ये जो पॉइंट हमें अचीव हुआ है, ये है पॉइंट नंबर ए, या फिर हम इसे जॉइंट बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. अब इसके बाद अगर हम जॉइंट बी को देखें, तो जॉइंट बी को मार्क करने के लिए कोई एंगल हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. तो एंगल नहीं दिया गया, लेकिन अगर मैं स्कीमेटिक डायग्राम को देखूं तो वहां से पता चलता है कि ये जो एक सेंटर लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट ओ से पास कर रही है, उसके अलोंग ये प्रेजेंट है. तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा. तो यहाँ पर इस सेंटर लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, इतना शायद सफिशिएंट होगा. अब पॉइंट बी से पॉइंट ए, या जॉइंट ए से बी, या फिर हम कहेंगे लिंक ए बी का लेंथ क्वेश्चन में दिया गया है हमें 1 मीटर, तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंगली. तो अब 10 सेंटीमीटर जितना स्केल मैं यहाँ पर ले करके इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क करूंगा. फर्दर उस पॉइंट को मैं जॉइंट ए से कनेक्ट कर दूंगा, एंड फर्दर मुझे लिंक ए बी मिल जाएगा. कोशिश कीजिए कि ये सारा का सारा ड्राइंग जो है आप लाइट शेड पेंसिल से ही करें, क्योंकि इन केस अगर आपसे कुछ गलत ड्रॉ हो गया तो उसे इरेज करते वक्त कोई ज़्यादा मार्किंग्स रहेंगी नहीं उसकी.
अब क्योंकि बी पॉइंट पे एक स्लाइडर है तो मैं एक स्लाइडर ही बना लेता हूँ यहाँ पर पहले। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया शायद। या तो प्रॉपर स्केल का यूज़ करके ही सभी डायग्राम्स को बनाना है। तो इनिशियली तो अभी हम लाइट पेंसिल से बनाएंगे, बाद में इसको डार्कन कर देंगे। अगेन थोड़ा गलती हो गया शायद। ओके। सो इसके बाद या फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बना लेते हैं अच्छे से। हाँ, तो इसकी जो बाउंड्रीज है उसको शेड कर देना है, क्योंकि वो फिक्स्ड रहेंगी बाउंड्रीज। और इसके अंदर का जो पिस्टन है वही मूव करने वाला है। अब इसके बाद पॉइंट बी मार्क हो गया, मुझे पॉइंट डी मार्क करना है। पॉइंट डी जो है पॉइंट ओ से 0.8 मीटर्स की दूरी पर है। नो, 0.6 मीटर्स की दूरी पर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 0.6 मीटर हमारे स्केल के अकॉर्डिंगली 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ओ से कितना नीचे है ये तो मुझे पता लग गया। अब कितना, सॉरी, आगे है वो तो पता लग गया, कितना नीचे है वो पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ये 0.6 वाला पॉइंट मार्क कर दूंगा यहाँ पर ओ से, इस सेंटर लाइन पर। अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ खींचूंगा, एक सेंटर लाइन और खींचूंगा। हाँ, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो पॉइंट सी मुझे क्वेश्चन में दिया गया है वो एक्चुअली में मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है ए बी लिंक के। तो मैं उसके मिड पॉइंट को भी मार्क कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर पॉइंट सी जो है इजीली हम मार्क कर लेंगे। एंड फर्दर मुझे सी डी का लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है, जिसे मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगा। तो हम स्केल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर पर किसी भी एक जॉइंट से हम देख करके लिंक ए बी के अलॉन्ग सी पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो ये पॉइंट सी हमें मिल चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद सी डी का जो लेंथ है वो है 0.8 मीटर्स, क्वेश्चन में जो दिया गया है 0.8 मीटर्स हमारे स्केल के अकॉर्डिंगली 8 सेंटीमीटर होगा। तो अपने स्केल, अपने रूलर के हेल्प से हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, जो कि उस हॉरिजॉन, सॉरी, उस वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, जो कि हमने ओ पॉइंट से 0.6 मीटर की दूरी पर लिया था। हाँ, शायद यही सही होना चाहिए। तो यहाँ पर मार्क करते हैं इस पॉइंट को। गाइस, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं आपको पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन करते करते ये सब कुछ बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमने पॉइंट डी मार्क कर दिया है, वहां पर भी एक पिस्टन है तो उसे भी बना ही लेते हैं। आपको ये विजिबल है ना क्या? मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ इसे। हाँ, शायद अब आपको विजिबल होना चाहिए। ओके। सो या अब इसके बाद पॉइंट डी को हमने मार्क कर लिया, वहां पर पिस्टन बना लिया। अब ये तो हमारा जो स्केमेटिक स्केच था वो प्रॉपर डायमेंशंस के हिसाब से और एंगल्स के हिसाब से हमने अपनी ड्राइंग शीट पर बना लिया। इसके बाद हमारा क्या स्टेप रहेगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ आईसीआर यहाँ पर होने चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर रिलेवेंट फॉर्मूला होता है, विच इज एन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, जहाँ पर कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ आईसीआर एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ लिंक्स। तो उसे यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ईज रहे इसे। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। आप लोगों को भी इस चीज़ का ईज रहे कि जो भी फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको विजिबल हों। तो जब भी हम कोई चीज़ ड्राइंग शीट के ऊपर लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि हम वहाँ पर उस डेटा को दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिखें। उन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0.5 mm जितना हो सकता है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्राई कीजिए कि कैपिटल लेटर्स में ही सब कुछ लिखना है, एक्सेप्ट गिवन डेटा एंड एक्सेप्ट कैलकुलेशंस। यहाँ से देखो 0.5 mm की दूरी पर मैं एक और पैरेलल लाइन बना लूंगा इसके, जिसके अलोंग मैं अपना नंबर ऑफ आईसीआर को कैलकुलेट करने वाला सिचुएशन लिखूंगा।
सो टोटल नंबर ऑफ आईसीआर यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर n, पहले इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, पूरा मतलब इस पैरेलल लाइंस के बीच में ही आना चाहिए लिखा हुआ। n is equals to small n into n minus 1 divided by 2, where n is number of links. Yep. सो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ लिंक्स लिखा है इसे भी थोड़ा पैरेलल लाइंस के बीच में ही डाल दो। ये सेपरेट लिखने पर कुछ प्रोफेसर जो है ना मार्क्स काटते हैं, तो नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा, रिस्क नहीं लेना। जब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक्स काउंट करेंगे। तो ये जो मेरा फिक्स्ड लिंक है इसको मैं लिंक नंबर 1 कहूँगा, एंड ये लिंक नंबर 2 होगा, एंड इसके नीचे जो फिक्स्ड लिंक था ये भी 1 एंड ये भी 1 होगा, एंड ये लिंक नंबर 3 हो जाएगा ये भी। और ये जो जॉइंट है यहाँ पर स्लाइडर के साथ लिंक ए बी का, उसे मैं बोल दूंगा लिंक नंबर 3, एंड फर्दर ये सॉरी लिंक नंबर 4 एंड ये 5 एंड 6। तो इस तरीके से हम अपने नंबर ऑफ लिंक्स का जो है काउंटिंग करेंगे। तो टोटल है यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स होंगे। तो यहाँ पर n का वैल्यू 6 है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 1/2 विच इज 15। याद रखें कि ये सब चीज़ें पेंसिल से ही लिखनी है, पेन से लिखने की कोशिश नहीं करनी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 के 15 आईसीआर प्लॉट नहीं करने वाले हैं, हम उतने ही करेंगे जितने रिक्वायर्ड हैं। अब रिक्वायर्ड कैसे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले फिक्सेड आईसीआर को काउंट करते हैं। अब ये एक फिक्सेड आईसीआर है क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, इस जीरो वेलोसिटी पॉइंट है ये, तो ये एक फिक्सेड पॉइंट है, तो इसको नेम दे देंगे I12 क्योंकि 1 और 2 के बीच में है लिंक, 1 और 2 के बीच में, तो I12 इसका नेम हो जाएगा। तो ये एक फिक्सेड लिंक है। अब इसके अलावा और तो कोई फिक्सेड लिंक यहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे। इसके अलावा हम परमानेंट लिंक्स को प्लॉट कर सकते हैं। फिक्सेड लिंक और परमानेंट लिंक के बीच का डिफरेंस होप सो आपको क्लियर हो। ऐसे लिंक्स जो जीरो वेलोसिटी के साथ हैं वहीं पर आईसीआर लाई करता है उस सर्टेन पॉइंट पर, तो उसे हम फिक्सेड आईसीआर बोलते हैं। अगर किसी मूविंग पॉइंट के ऊपर आईसीआर लाई करता है तो परमानेंट। जैसे यहाँ पर इस लिंक को देख पा रहे हैं, ये टर्न करेगा या मूव करेगा इनडायरेक्टली, तो ये एक टर्निंग पेयर भी हो सकता है, लिंक 2 3, और यहाँ पर इसका आईसीआर भी I23 होगा। एंड फर्दर हम बाकी रिमेनिंग परमानेंट आईसीआर्स को प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड और परमानेंट आईसीआर्स हम विजुअलाइज करके ही प्लॉट करते हैं। तो ये I35 हमारा एक और आई फिक्स्ड परमानेंट आईसीआर हमने प्लॉट किया है, एंड ये वाला है 3 और 4 के बीच में है, तो ये I34 हो जाएगा, एक और परमानेंट आईसीआर। इसके अलावा 1 और 4 के बीच में जो रहेगा वो होगा इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कैसे प्लॉट करेंगे, इसके मोशन के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे स्लाइडर के वेलोसिटी के मोशन के परपेंडिकुलर, और डैश लाइन होगा। तो क्योंकि इन्फिनिटी पे तो डैश लाइन बना दो और एक अच्छी खासी लंबी लाइन बना दो। हाँ, शायद इतना सही रहेगा अभी के लिए, बाद में अगर और एक्सटेंड करना होगा तो हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है। तो क्या है ना गाइस, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्लाइडर्स होते हैं ना, जहाँ भी अगर आपको किसी आईसीआर ने प्लॉट करने वाली मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ जाए और वहां पर आपको स्लाइडर दिख जाए,
तो ये देख लीजिएगा, स्लाइडर के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अच्छा खासा स्पेस रखिएगा अगर आपको आईसीआर प्लॉट करना है तो। यहाँ हम लिख देते हैं जो भी I13 आईसीआर वो इन्फिनिटी पे है, तो I13 एट इन्फिनिटी लिख दिया। इसके बाद हम एक और दूसरे स्लाइडर को देखते हैं, ये डी पॉइंट पर जो है, या डी जॉइंट पर जो स्लाइडर है, यहाँ से भी इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड एरो बनाना आपको, ठीक है। ऐसे, हाँ, I16 एट इंफिनिटी, क्योंकि ये लिंक 1 और 6 के बीच में था। अब इसके बाद शायद हमने जितने भी पॉसिबल आईसीआर हो सकते थे परमानेंट और फिक्स वाले, जो ऑब्जर्वेशन से प्लॉट किया जा सकते हैं, उन्हें प्लॉट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो नाइदर फिक्स नॉर परमानेंट वाले हैं उन्हें बनाना। तो यहाँ पर एक सर्कल मैंने बना लिया उन्हें प्लॉट करने के लिए। सर्कल मुझे हेल्प क्या करेगा, कैनेडीज थ्योरम को फॉलो करने के लिए हेल्प करेगा। कैनेडीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली कोई से भी तीन लिंक्स अगर आपस में रिलेटिव मोशन में हैं, देन उन तीनों का आईसीआर एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। सब उसी लॉजिक का यूज हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हम इस सर्कल के अलोंग जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स है पहले तो उनको लिख देंगे। तो नंबरिंग करेंगे हम अपने सीक्वेंस के हिसाब से, एंड फर्दर वहां से हम ट्राइंगल बनाएंगे। एंड ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे दो पॉसिबल ट्राइंगल्स है जिसकी बाकी सभी साइड्स नोन है, लेकिन जो कॉमन साइड है वो अननोन है। अब उसी का फंडा यहाँ बताने वाले हैं। यही ट्रिक है इस आईसीआर मेथड को अच्छे से और समझने की, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर सिंस हमारे पास 6 लिंक्स हैं, तो यहाँ पर मैं अ, एक सेकेंड गाइस। अब यहाँ से देखो, हमने एक चीज़ की है कि यहाँ पर मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने 7 आईसीआर्स पहले ही प्लॉट कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं एंगुलर वेलोसिटी रेशो को अगर मैं देखूँ, तो एंगुलर वेलोसिटी रेशो अकॉर्डिंगली अगर ओमेगा एक्स बाय ओमेगा वाई है, यानी कि इन्हीं दो लिंक्स की एंगुलर वेलोसिटी का रेशो है, दैट कैन बी रिटन एज आई ऑफ 1 y इंटू आई ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आई ऑफ 1 x इंटू आई ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर ये क्रॉस में है। कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि आई ऑफ डब्ल्यू ओमेगा एक्स लिखा है तो उसके सामने लिखते हैं आई ऑफ 1 ऑफ x, कि हमें भूल जाता है कभी कभी, लेकिन याद रखना ये क्रॉस में है। तो अगर ओमेगा एक्स ऊपर है तो I1 y ऊपर होगा, ठीक। अभी I1 y XY, I1 x और I x y डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ये। हम्म। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने 7 आईसीआर प्लॉट कर दिए, लेकिन टोटल 15 है, मुझे 15 प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अपनी वेलोसिटी ऑफ बी को देखूं, तो वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ ओ ए, ये जो लिंक ओ ए है ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओ ओमेगा ओ ए से रोटेट कर रहा होगा। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा अम, नहीं सॉरी, आपको ये प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आपको इनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो ही देखना है एक बार। तो ओमेगा ओमेगा बी बाय ओमेगा ए विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, ए लिखने की जगह हम शायद ओ ए लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आई ऑफ 1,
हाँ, तो यहाँ पर मैंने एंगुलर वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर इसका लिख दिया है आपके सामने स्क्रीन पर, तो इसी फॉर्मेट में ही रहेगा। तो यहाँ पर बी और ओ ए की एंगुलर वेलोसिटीज को मैंने आपस में रिलेट कर दिया है। तो अगर यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो यहाँ से ओमेगा बी इंटू आई ऑफ वन बी इंटू आई ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि बराबर हो जाएगा ओमेगा ओ ए इंटू आई ऑफ वन टू इंटू आई ऑफ एक्स वाई, जो भी मतलब यहाँ पर नंबर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन कौन से आईसीआर हमें प्लॉट करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 निकाल लिया, V4, तो हमें पता लग गया कि हमें कौन से आईसीआर लगेंगे। तो इसमें से एक तो हमने प्लॉट कर लिया था I12, अब बचा उसके बाद 24 वाला, वो हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि I12 की जगह, सॉरी, अब जो एक्स्ट्रा में मुझे फाइंड करना है वो 24 फाइंड करना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम बाकी बचे हुए आईसीआर्स को भी देख लेते हैं, जो भी मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली निकालने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे प्लॉट करूंगा तो मेरा टाइम जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सो टाइम नहीं जाना चाहिए, मैं अच्छे से करना है इन सब चीज़ों को। सो इसके बाद क्या है, तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं नीचे। यहाँ पर नीचे हम रफ में लिख रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए बाद में लिखने के बाद इसको इरेज कर देना है कि मुझे कौन कौन से लिंक चाहिए, मैं उनका नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे I/24 चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से 36 चाहिए, फर्दर उसका भी नाम लिख दिया गया है। ऐसे ही बाकी वाले लिखने हैं। एंड ऐसे ही पूरा एक लिस्ट है कि कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। तो पांच, ये पांचवा आईसीआर है, तो ठीक है। तो ये ऊ- तो ये 15 है लास्ट में, फिर 25 है और 13 है। तो यहाँ पर ये आईसीआर मुझे प्लॉट करने हैं, इससे होगा क्योंकि देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच आईसीआर मुझे अब एक्स्ट्रा और प्लॉट करने हैं। तो 7 और 5 कितने, 12, टोटल कितने हैं, 15, यानी कि 3 मुझे नहीं प्लॉट करने हैं। और तो यहाँ पर अब हम इसे प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, अब आएंगे हम इस सर्कल के अंदर। अब इस सर्कल के अंदर हम सीक्वेंस वाइज अपनी नंबर ऑफ लिंक्स को इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पर सिंस हमारे पास 6 लिंक्स हैं, तो अब उन लिंक्स को मैं इस सर्कल पर प्लॉट करके ट्रायंगल्स ऑब्टेन करता हूँ। तो एक सीक्वेंस में ही रहे तो अच्छा है, अगर आप मिक्स करके लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो 1, 2 एंड 3, 4, 5 और 6, इससे आपको एक हेक्सागन मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर स्केल से बना सके तो ठीक, बना रफ एंड से बना सकते हैं, हम यहाँ स्केल से ही बना लेते हैं। 1 और 2 को कनेक्ट कर देंगे एंड फर्दर अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर जो जो आपने आईसीआर लोकेट कर रखे हैं उनको डार्क करते जाना है। जैसे 1, 2 हमने लोकेट कर दिया है, तो उसे डार्क कर दिया है। इसी तरीके से 2, 3 भी हमने लोकेट कर रखा है, उसको डार्क कर दिया। अच्छा, अब 2, 3 के बाद कौन सा है, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो यहाँ पर अब इन सभी आईसीआर को इसी तरीके से हम इस सर्कल के लंग मार्क कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है ना कि हम, हाँ, इससे फायदा ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं बहुत सारे आईसीआर्स के बीच में कि कौन सा अपलोड करना है, अब कौन सा रह गया है, तो आपसे कुछ छूटता नहीं है अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पर हमने 1, 4 भी तो अपलोड कर लिया, तो उसे भी डार्क कर देते हैं। तो इसी तरीके से 2, 3, 3, 5 और 5, 6 जो है हमने प्लॉट कर रखे हैं। तो
उनको यहाँ मार्क कर देते हैं। यहाँ पर हमने 3 4 भी तो मार्क कर दिया, उसे भी डार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ 5 हो गए हैं। 6 सॉरी। तो ये एक कौन सा रह गया, ये देखना पड़ेगा। हाँ 1 6 भी तो हमने प्लॉट किया, तो 1 6 भी डार्क कर देंगे, तो टोटल 7 जो हमने अभी तक ऑब्जर्वेशन से ही फिक्स्ड और परमानेंट आईसीआर प्लॉट किए हैं, वो यहाँ पर हम मतलब कर देंगे सर्कल के अंदर, मतलब उन लिंक्स को कनेक्ट करके। अब जो हमें फाइंड करने हैं उसे हम डैश्ड लाइन से बनाएंगे, या फिर कह सकते हैं फेड लाइन से बनाएंगे। तो हाँ फेड लाइन से। वैसे ही जो भी मुझे फाइंड करने थे, जैसे कि 3 6 फाइंड करना था एंड 2 4 फाइंड करना था, तो उनको फेड कर दिया ना। ऐसे ही जो हमने नीचे लिस्ट बना रखी सबको यहाँ पर प्लॉट कर देना है। तो एक सेकंड गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस गाइस। हाँ तो यहाँ पर हम ICR 1 3 को भी डैश करेंगे एंड फर्दर 1 5 को भी, क्योंकि ये भी फाइंड आउट करने हैं। अब सॉरी सॉरी, थोड़ा ज़्यादा रेज कर लिया वॉल्यूम। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, कैनेडीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली कोई से भी 3 लिंक अगर हम यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, तो उनके आईसीआर एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे पॉसिबल ट्राइंगल्स देखेंगे जिनमें हमें दो साइड्स नोन हो एंड तीसरी साइड अननोन है दोनों साइड्स में, एंड दोनों ट्राइंगल्स में वही अननोन साइड कॉमन हो। तो ऐसे ही हम कुछ ट्राइंगल्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं कौन से ट्राइंगल को देखा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर जो लिंक्स हमारे रहते हैं, तो उन लिंक्स के अलोंग के आईसीआर को ऑब्जर्व करना शुरू करें, क्योंकि पॉसिबल होता है कि उन्हीं के अलोंग हमें अपना जो पहला ट्रायंगल है वो मिल जाए, जिसे हम आईसीआर जल्दी जल्दी से लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक नंबर 3 को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, तो 3 से पास होने वाला ट्रायंगल, हाँ यहाँ पर I 1 6 भी जो है ऐड कर दिया गया है, सॉरी 2 6 भी ऐड कर दिया गया इस लिस्ट में, ठीक है, तो वो भी फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल देख रहे थे, तो ट्रायंगल नंबर 1 2 और 1 2 4 और 2 3 4, ये वाला ट्रायंगल अगर हम देखें तो इसमें बाकी सभी साइड्स नोन है, बट जो 2 4 वाली साइड है वो अननोन है, आईसीआर जो है वो अननोन है। साइड नहीं से आईसीआर कहना रहेगा, तो 1 2 4 और 2 3 4 में बाकी 3 में से 2 आईसीआर पता है दोनों ट्रायंगल्स में, बस एक नहीं पता है जो कि इन दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। अब देखो इसको प्लॉट करने का लॉजिक क्या है कि 1 2 आईसीआर 1 4 आईसीआर और 2 4 आईसीआर कैनेडीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक ही लाइन में होने चाहिए, एंड वैसे ही 2 3 3 4 और 2 4 भी सेम लाइन पर होना चाहिए। तो ऐसे मुझे दो लाइंस मिल जाएंगी एंड उसका इंटरसेक्शन मेरा रिक्वायर्ड आईसीआर हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस लिंक में मैं देखूँ, तो आईसीआर हमारा 3 4 जो है वो यहाँ पर है, एंड 3 4 के बाद ये 2 2 3 यहाँ पर है। तो इस लाइन के अलोंग ये क्या बोलते हैं, ये 2 3 और 3 4 वाले आईसीआर को कनेक्ट करने वाला लिंक या लाइन अलोंग ही हमारा आईसीआर होगा, तो उसको एक्सटेंड करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, मेरा सर बीच में आ गया था गाइस। तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हाँ तो इस लाइन के लॉन्ग ही आईसीआर लाई करना चाहिए। वो कहाँ पर लाई करेगा, आप एक और लाइन की हेल्प से पता लगेगा। और दूसरी लाइन मिल जाएगी हमको कहाँ से, ICR 1 2 और 1 4 के कनेक्शन से। अब 1 2 तो हमारे पास है ही फिक्सेड में, बट 1 4 तो हमारा स्लाइडर के लॉन्ग है। अब जब स्लाइडर मोशन करते करते
लिंक नंबर 1 तक पहुंच जाएगा, तब हम उसे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो पॉइंट नंबर 1 से पास करेगा आईसीआर 1 4 जो कि इंफिनिटी पे है। तो यहाँ पर मैं आईसीआर 1 2 और 1 4 को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग प्लॉट कर सकता हूँ, जो कि फिक्स्ड जॉइंट 1 से पास करेगा। तो ये इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिसके अलोंग आईसीआर 1 2 और 1 4 लाई करेंगे। इनका इंटरसेक्शन दस हमारा जो क्या है, वो होगा हमारा रिक्वायर्ड आईसीआर 2 4। तो I 2 4 हमने प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पर डार्क पेंसिल का यूज करके इसको प्लॉट कर लेना है, क्योंकि इतना करेक्ट हो जाने के बाद गलती नहीं होने वाली है। वो तभी होगी कि जब आपने स्पेस कम दिया और आपके ड्राइंग शीट से बाहर जा रही हो ड्रॉ। ये और इसके बाद हम ऐसे ही और भी ट्रायंगल चुनेंगे, लेकिन पहले जो हमने फाइंड आउट कर लिया है उस आईसीआर को हम डार्क कर देंगे। अब ऐसे ही और ट्रायंगल्स को हमें ढूंढना है और रिमेनिंग आईसीआर को प्लॉट करना है। तो गाइस ये आईसीआर वाला जो है ना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। तो अगर एग्जामिनेशन में इसके अलावा कुछ और करने का हो तो इसको मत करना। लेकिन फिर भी अगर बच जाए कि आपके पास ऑप्शन और कोई है नहीं, तो इससे आसान भी कोई नहीं है और इससे लंबा भी कोई नहीं है, मतलब वेलोसिटी एनालिसिस वाला मेथड अगर देखा जाए तो। सो अब बाकी ट्रायंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, ट्रिक क्या थी कि हम लिंक्स के अलोंग चेक कर रहे थे। अब लिंक 3 के अलोंग चेक कर लिया तो हमें ICR 2 4 मिल गया। अब लिंक 2 के अलोंग चेक कर लेते हैं। सो 2 से पॉसिबल ट्रायंगल कौन सा है, 2 5 1। लेकिन इसमें तो दो अननोन्स आ गए, तो ये ट्रायंगल तो नहीं होना चाहिए। अभी जिसे हम डील करने वाले हैं वो वाला तो नहीं होगा ये। अब और क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर। हम्म, तो इस पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये सोचना ज़रूरी है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो या तो यहाँ पर अब लिंक 2 के अलॉन्ग ही हम देखने वाले हैं इस चीज़ को। तो लिंक 2 के अलॉन्ग यहाँ पर अगर मैं लिखूं ट्रायंगल नंबर, तो यहाँ पर पहले तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसे हटा देते हैं, ये तो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो इसे हटा देते हैं पहले। एंड कोशिश करो कि लाइट पेंसिल से ही बने ताकि आपकी शीट ज़्यादा गंदी ना हो। एंड इसके बाद हम देख रहे थे कि यहाँ लिंक नंबर 2 से ऐसे कौन से पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल 1 2 4, पर इसमें तो तीनों के तीनों नोन है, तो हम देखते हैं ट्रायंगल 1 2 5। इसमें दो अननोन से, तो चलिए ये भी सही नहीं है। ट्रायंगल 2 3 5, इसमें 2 5 जो है कॉमन है। लेकिन 1 6 5 के साथ अगर इसको देखें तो इसमें भी दो साइड नोन है, एक अननोन है आई सर, लेकिन वो दोनों कॉमन नहीं है। तो ये ट्रायंगल्स भी नहीं रहेंगे कॉम्बिनेशन वाइज पॉसिबल। तो 1 2 3 ट्रायंगल भी हमें सिलेक्ट नहीं करना, इसके मतलब है। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करते करते देखना है। तो अगर मैं ट्रायंगल नंबर देखूं 1 2 3, तो उसमें 1 3 जो है अननोन है। और ट्रायंगल 1 4 3,
तो इसमें भी एक ही अननोन है, वो है 1 3, तो यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो 1 4 3, ये 1, ये 4 और ये 3, एंड 1 2 3, ये 2। अब इनके बीच में 1 3 अननोन अननोन है, लेकिन बाकी सारे नोन है। तो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू ही डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आप इसे पकड़ पाते हैं ना। तो अब इसको प्लॉट करने के लिए हम बाकी जो भी पहले में हमने आईसीआर प्लॉट की थे, वैसे ही इसको भी प्लॉट करना है। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो है इस ट्राइंगल के अंदर के जो आईसीआर है वो इस एक्चुअल मैकेनिज्म में कहाँ कहाँ है। सो 1 4 तो इन्फिनिटी पे है, उसे तो चलो क्या ही स्केल करना। और 3 4 जो है यहीं पर इसी लाइन के, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसका इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि इस लिंक 2 के अलॉन्ग जो है हमारा आईसीआर 1 2 और 2 3 है। तो इससे पास होने वाली जो लाइन है, क्योंकि कैनेडियंस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो बचा हुआ तीसरा आईसीआर था वो इस लाइन के अलॉन्ग भी रहेगा, और 1 4 और 3 4 वाले के अलॉन्ग भी रहेगा। तो इनका इंटरसेक्शन जहाँ भी होगा वहीं हमें मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं फर्दर। ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ये है हमारा आईसीआर 1 3, जिसको डार्क पेंसिल से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी हम I13 को डार्क कर देंगे। मैं काफ़ी स्लो पेस पे पढ़ा रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर मुझे फास्ट करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऐसे ही देखें इनिशियली। सब बाकी के रिमेनिंग ट्रायंगल्स को भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, इन बचे लिंक्स को देखेंगे। तो हमने लिंक 2 और 3 देख लिया, अब जरा लिंक 5 को देखते हैं। तो 5 से पॉसिबल ट्रायंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। तो ये वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थे। सॉरी गाइस, मेरा वॉल्यूम चला गया था। तो 1 6 5 और 1 3 5 ये ट्रायंगल्स के अलोंग आईसीआर 1 5 हम प्लॉट करेंगे। तो वैसे ही करेंगे, मतलब जैसे हमने किया था। तो ये जो 1 3 और 3 5 है, इसको कनेक्ट कर दूंगा तो एक लाइन मिलेगी, इसे फर्दर एक्सटेंड करूंगा। तो ये 1 6 और 6 5 वाले लिंक के अलोंग वाली जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर वहीं पर हमारा होगा आईसीआर 1 5। तो ये पॉइंट जो है हमारा आईसीआर 1 5 है। इसको डार्क पेंसिल से लिखेंगे। तो ऐसे ही जो जो आईसीआर हमारे वो होते जाएंगे उसे हम नीचे टिक करेंगे, एंड यहाँ पर फर्दर हम उसे डार्कन कर देंगे। ये जो मैंने नीचे अलग से लिख रखे हैं आईसीआर, जिनको मैं टिक करता जा रहा हूँ, तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियली लिख लो और उसे अपने सर्कल पे प्लॉट कर दो, फर्दर वहीं पर डार्क करो and यहीं पर इसको इरेज कर दो, ये जो लिख रखे हैं नीचे अलग से। वैसे ही बाकी ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे न, बाकी आईसीआर्स भी हम प्लॉट करने वाले हैं। मैं यहाँ से रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, ताकि आपको जो है मतलब आपका टाइम बचे एंड फर्दर आप, क्योंकि यहाँ तक तो लॉजिक क्लियर हो चुका होना चाहिए कि कैसे हमें करना है इनको प्लॉट, और कैसे ही हम या क्यों हम इसे एक या दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन पर ही मार्क कर रहे हैं। तो कैनेडीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली ऐसा ही होना था कि तीन आईसीआर्स एक लाइन पे होंगे। तो एक लाइन हमें तीन आईसीआर्स वाली मिल गई, तो दूसरी लाइन तीन आईसीआर्स वाली मिली। अब लाइन तो 2 पॉइंट से भी डिफाइन हो जाती है, तो इसलिए दो ही आईसीआर्स मिल जाने पर हम वो लाइन प्लॉट कर देना, तो तीसरा ऑटोमेटिकली उसी लाइन पर होना चाहिए। तो ऐसे ही दो लाइन जब हमें मिल जा रही है तो उनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो हमारा रिक्वायर्ड आईसीआर है। तो ऐसे ही बाकी ट्राइंगल्स को भी फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो ऐसे आप इस ट्राइंगल को भी देख पा रहे हैं। तो फर्दर मैं यहाँ पर
I15 हमारा कहाँ पर, यहाँ पर था, ठीक है। I15 और I12, तो I15 और 12 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले। तो ट्राइंगल 125 और 235 इसके लॉन्ग के आईसीआरस को हम स्ट्रेट लाइंस पे प्लॉट करके इंटरसेक्शन ले रहे हैं। एंड कैनेडी थ्योरम से रिक्वायर्ड हमारा आईसीआर हमें मिल जाएगा, जो कि है ICR 25। यहाँ पर हम इसको डार्क पेंसिल से लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब इस सर्कल के अंदर से डार्कन करना ज़रूरी है, तो डार्क कर दे रहे हैं इसको हम। हाँ, ओके। यहाँ से बाकी के बचे हुए रिमेनिंग ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करके बचे हुए जो भी 2-3 आईसीआर होने प्लॉट करते हैं फटाफट से। तो 6-3-5 ये एक ट्राइंगल, यहाँ पर 2 साइड्स नोन है और एक अननोन है। एंड फर्दर और कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? 6-3-5 और 1-6-3, तो ये 2 रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब बचे हुए जो हमने यहाँ पर रफ स्केच बना रखे थे, उन रफ स्केच को हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। आप इसको हो सके तो एक रफ शीट पे ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर ना ही बनाए तो ज़्यादा सही है। हाँ, तो ट्राइंगल 1-6-3 और 6-5-3 ये प्लॉट हम करेंगे। अब इससे हमें मिल जाएगा ICR 6-3 कैनेडी थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो वही लॉजिक है, आईसीआर को ढूंढो, जो प्लॉट कर रखे हैं उन्हें कनेक्ट करो, लाइंस प्राप्त करो, उन प्राप्त किए गए लाइंस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आईसीआर। तो इस लाइन के अलॉन्ग रहेगा एक तो, अब दूसरा कहाँ रहेगा? हम्म। हाँ, तो सॉरी गाइज, मेरा वॉल्यूम अगेन जा चुका था। तो यहाँ पर हमने आईसीआर को प्रॉपरली मैनर में प्लॉट किया। क्या किया था, स्लाइडर डी हमने अज्यूम किया था कि वो I13 आईसीआर तक चला जाएगा, तो वहां से जो उसका I16 वाला है वो ICR 13 से पास करता हमने अज्यूम किया, तो एक स्ट्रेट लाइन ली, एंड फर्दर वहां से जो रिमेनिंग आईसीआर थे 6-5 और 3-5 वाला, जहाँ से जो लाइन प्लॉट हो रही थी इन दोनों आईसीआर से, उनका इंटरसेक्शन निकाला है, हमें हमारा रिक्वायर्ड आईसीआर मिल गया। अब फर्दर इसे भी डार्क कर देंगे, एंड जो बचा हुआ रिमेनिंग है उसे हम प्लॉट कर लेंगे। तो I26 ही बचा है बस। तो जैसे जैसे आपके आईसीआर प्लॉट होते जाएंगे, वैसे वैसे आप इजीली ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन इनिशियली थोड़ा आइडेंटिफाई करना दिक्कत होता है। तो कोई भी रैंडम लिंक से स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से आप देख सकते हैं कि इससे कौन से पॉसिबल ट्राइंगल्स, जैसे हमने इनिशियली लिंक 2 से स्टार्ट किया था ना। हाँ, यहाँ पर हमें हमने अपना रिक्वायर्ड आईसीआर इन लाइंस के रिस्पेक्ट में मिलेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पहले से प्लॉट करी थी, जो O पॉइंट से पास हो रही है, उसके अलोंग, और एक लाइन जो I23 और I36 से जो पास हो रही है, उस वहां से एक लाइन मिलेगी। वन फर्दर जो ये उस हॉरिजॉन्टल लाइन से पास करेंगे, यहाँ पर I12 लाई कर रहा है, तो वहां पर हमें मिल जाएगा उनके इंटरसेक्शन से I26। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे आईसीआर्स प्लॉट हो चुके हैं, जो भी हमारे रिक्वायर्ड आईसीआर्स थे। तो एंगुलर वेलोसिटी रेशो से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन कौन से आईसीआर्स हमारे लगने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब मैं शीट को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि अब हम कैलकुलेशंस कर सकें। तो कैलकुलेशन करने से पहले हम अपना गिवन डेटा लिखेंगे।
गिवन डेटा आपको मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर लिखना है सबसे पहले, एंड फर्दर आपको अपनी चीज़ें प्लॉट कर मतलब करनी है। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं सभी सभी लिंक्स को, है ना, क्योंकि हमने फेड पेंसिल से बनाया था। अब सही बन गया है, कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक गो में बन गया। तो अब यहाँ पर हम अपनी पेंसिल से डार्क कर देंगे जो भी लिंक्स हैं हमारे। तो लिंक ए बी ओ ए एंड सी डी को हम डार्क कर देंगे। फर्दर इन स्लाइडर्स को एंड जो रिजिड सपोर्ट्स हैं उनको भी आप डार्क कर दीजिए पेंसिल से। तो फटाफट से हमें बस इनको डार्क कर लेना, जिससे अम, हमारे लिंक्स को हमें डार्क करना ही था वैसे भी, क्योंकि इनिशियली शेड लाइट रखने का यही मतलब कारण था कि कोई अगर मिस्टेक हो तो मिटाते वक्त वो अपना छाप ना छोड़ दे पेपर में ना, तो ड्राइंग शीट गंदी ना हो। हाँ, तो यहाँ पर ये I26 भी हमने फाइंड कर लिया, तो उसको भी डार्क कर देंगे। अब आप चाहें तो ये 1 और 2 के बीच में आप I12 लिख सकते हैं, देन 2 और 3 के बीच में I23, एंड फर्दर ऐसे ही आप सबके लिए ICRs के लिख सकते हैं वैल्यूज। वैल्यूज नहीं, मतलब आप इस सर्कल के अंदर उन ICRs को डायरेक्टली लिख सकते हैं, I1 2 2 3 करके, एंड ये जो ड्राइंग हमने बनाया था एक्स्ट्रा ट्राइंगल के लिए, इसको इरेज कर देंगे अच्छे से। तो यही था ICR मेथड पूरा प्लॉट करने का। अब इसके बाद हम अपनी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस करेंगे। वीडियो भी लंबा हो गया है, बट स्टिल मैंने कोशिश किया था कि ये छोटा हो जाए, लेकिन मैंने जितना पॉसिबल हो सके उतना लेंथी से खींचा है, ताकि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए इसके रिलेवेंट। बाकी इसमें स्पीड तो आपका मेहनत करके बनेगा, मैं थोड़ा सा क्लिप्स एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको भी विजिबल होगी मैं क्या लिख रहा हूँ। सो हम यहाँ पर अपना गिवन डेटा लिखेंगे, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। सो क्लिप्स कंपलसरी है, इस क्लिप्स तो यूज़ करना ही है, क्योंकि ड्राइंग शीट हिल जाएगी तो ड्राइंग खराब होगा। सो दिस वाज ऑल। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, एंड उसके अंदर हम अपना टू फाइंड जो है वो लिख देंगे, एंड कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखने की कोशिश करनी है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी फाइंड करना है, वीडी। एंड ऐसे ही हमने कुछ लिंक्स बी सी सॉरी बी ए लिंक का एंड सी डी लिंक का एंगुलर वेलोसिटी बताना है, एंड फर्दर एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताना है सी। तो इसके बाद हम लिखेंगे गिवन डेटा, वो भी पैरेलल लाइंस के अंदर। हाँ, तो गिवन डेटा हम लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी ओ ए का दिया था, विच इज 2 पाई बाय 60 इंटू आरपीएम, जो कि 60 आरपीएम था, तो कैलकुलेट करने पे 6.283 रेडियंस पर सेकेंड मिल जाएगा। एंड फर्दर जो लिंक्स का लेंथ हमें दे रखा है वो प्रॉपर डायमेंशंस के साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर लिया तो तुम 10 सेंटीमीटर लिख दो, तुम्हें जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो लिखना है। जैसे ओए लिंक का लेंथ अपने को दे रखा था 0.3 मीटर, 0.3 लिखना है, 3 सेंटीमीटर नहीं लिख देना। और ऐसे ही बाकी लिंक्स का लेंथ भी यहाँ पर मेंशन कर देना।
तो यहाँ सारा गिवन डेटा लिख लिया। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे दूसरी साइड पे, जहाँ पर भी स्पेस मिल जाए ना आपको, वहीं पर आप कर दो कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही लिखना है कुछ। और कैपिटल लेटर्स में ज़रूर लिखना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एक सेकंड गाइस। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी है हमारा यहाँ पर ओमेगा ओ ए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था वीडियो में, इंटू I12 I24। तो यहाँ पर हम स्केल से पूरा प्रॉपर मेजर करेंगे I12 और 24 के बीच का डिस्टेंस, एंड फर्दर उसे दोबारा से मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में स्केल में कितना आ रहा है, कैसे दिखना है। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। या सुपर। सो थोड़ा शीट ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर इस स्केल से देख पा रहे हैं तो ये अराउंड 2.8 सेंटीमीटर्स है। तो अब थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं। और ये 2.8 सेंटीमीटर्स है, तो हमारे स्केल के अकॉर्डिंगली कितना मीटर्स हुआ? वो होगा 0.28 मीटर्स। तो यहाँ पर ओमेगा ए की वैल्यू 6.283 थी, एंड I1224 की वैल्यू जो है 0.28 होगी। वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड फर्दर वैल्यूज इवेल्युएट करेंगे। याद रखें, हमें यहाँ पर अपने स्केल के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना है इन सब चीज़ों को। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लिख देना कुछ भी। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा 6.283 इंटू 0.28। हाँ सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, 0.628 लिख दिया था। तो 6.283 इंटू 0.28। सो एक कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू आएगी, या उसकी वैल्यू होगी 1.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ सॉरी सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया ना। और अगर इसको मैं 2.8 से मल्टीप्लाई करता तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड होता। ठीक। तो एक और गलती ये भी पता लगेगी, यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ही अब उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ डी इवेल्युएट करेंगे, जो कि हो जाएगा ओमेगा ओ ए इंटू I12 इंटू I26। सो यहाँ पर I12 एंड I26, एक सेकंड गाइस, थोड़ा म्यूट हो गया क्या वॉल्यूम मेरा? नहीं, ठीक है। हाँ, तो शायद अब माइक सेटिंग थोड़ा सही कर दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पर वी डी जो है ओमेगा ओ ए इंटू I12 इंटू I26 हो गया। बेसिक इसको भी हम स्केल से मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.7 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कैलकुलेशंस। हाँ, तो ओमेगा वाई की वैल्यू हमारे पास है, जो कि है 6.283 इंटू इसकी वैल्यू 0.07 मीटर्स, क्योंकि 0.7 सेंटीमीटर्स था। तो 0.07 मीटर्स होगा हमारे स्केल के अकॉर्डिंगली, एंड फर्दर इसकी वैल्यू होगी 0.439 मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरीके से ओमेगा सी डी हम निकालेंगे, जो कि इसको अगर नंबर दे दें तो ये फिफ्थ लिंक पर है, तो ओमेगा 5 इसको नंबर देते हैं।
एंड ओमेगा 5 को हम एंगुलर वेलोसिटी रेशो के हिसाब से ओमेगा 2 की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ओमेगा 5 इक्वल्स टू ओमेगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ओमेगा 2 है तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये ओमेगा 2 इंटू आई ऑफ 1 2 इंटू I 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आई ऑफ 1 5 इंटू I of 2 5। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओमेगा 5 और ओमेगा 2 का रेशो ले लिया। यहाँ से ओमेगा 2 हमारे पास था, ओमेगा 5 हम यहाँ डालेंगे तो वैल्यूज बाकी यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं यहाँ इन आईसीआर के बीच का डिस्टेंस वो मेजर करेंगे एंड जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा रिजल्ट 1.949 रेडियन पर सेकेंड। तो है ओमेगा सी डी। आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो, आपको ऐसा नहीं कि वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप पुट करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड ऐसे ही ओमेगा ए बी है, मतलब लिंक ए बी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा ए बी विल बी ओमेगा 2 टाइम्स I 12 I 23 डिवाइडेड बाय I 13 I 23। इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट आएगा हम 1.365 रेडियंस पर सेकेंड। एंड देन एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ सी को हम लिखेंगे v ऑफ c। v ऑफ c कैन बी रिटन एज ओमेगा 5 इंटू फिफ्थ लिंक से कंपेयर्ड है तो I 15 रहेगा और रहेगा यहाँ पर c। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इस मैकेनिज्म में जो c जॉइंट है ये I 15 के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर इस लिंक का मेरे को एंगुलर वेलोसिटी पता है सी डी का, तो मैं सी का I 15 के अबाउट जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो निकालता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों इसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन करता है बाद में, लेकिन फर्दर पहले इसका वेलोसिटी देखते हैं क्या होगा। ओमेगा 5 इंटू I 15 c। अब I 15 और c का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे एंड फर्दर यहाँ पर क्यों ये प्योर रोटेशनल मोशन है कर रहा है I 15 के अबाउट, ये मुझे कैसे पता चला ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फर्दर पहले तो इसकी देखो गाइस, अगर आप चाहें तो बीच में थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि जहाँ पर मैंने पॉजेस लिए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉजेस लिए हैं इस वीडियोस में, तो वहाँ से आप स्किप ही कर दीजिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। या फिर वीडियो को रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा फास्ट पेस पे देखें, है ना, 2.5x वगैरह करके। हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा 1.715। हाँ, तो 1.715 मीटर्स पर सेकेंड इसका वेलोसिटी रहेगा। तो बस यहीं पर ये पूरा खत्म है कहानी। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों I 15 के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और मुझे कैसे पता चला कि उसके अलॉन्ग ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है, ना आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर पहले तो इतना ही आपको करना है इस पूरे शीट के अंदर, तो आपको ये थोड़ा फास्ट करना है कि 20 मिनट के अंदर आपको करना है, वरना आपका ये काफ़ी अच्छा खासा टाइम एग्जामिनेशन हॉल में ले सकता है। अगर आपको ऑप्शन हो कि इस क्वेश्चन को छोड़ के कुछ और करना है तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए। ये आसान बहुत है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत है ऊपर से, एग्जामिनेशन में टाइम ज़्यादा क्रूशल है। तो इस स्लाइड पे अगर आप देख पा रहे हैं अभी,
तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मेरे को पता लगा या मेरे को कैसे पता चला कि उसी सर्टेन पॉइंट के बाद एक प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और कैसे। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं इस स्लाइड पे, इफ यू कैन सी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन लिंक बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी लिंक के अलोंग हमें किसी एक भी पॉइंट का अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है एंड बाकी वेलोसिटीज की सिर्फ डायरेक्शन पता है, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं बाय प्लॉटिंग देयर आईसीआर। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पी से इन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वेलोसिटी वीपी के एंड ये वेलोसिटी वेक्टर वीपी के अलोंग इन्होंने परपेंडिकुलर बनाया, इन वीक्यू के अलोंग भी एक परपेंडिकुलर बनाया, इनके जो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन था दैट वाज देयर आईसीआर। एंड फर्दर कोई सा भी वेलोसिटी वेक्टर इसका डायरेक्शन हो यहाँ से निकाला जा सकता है एंड एज्यूम किया जाता है कि इस इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट में प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा था। तो यहाँ पर अगर आर का वेलोसिटी मुझे निकालना है तो बस मुझे आई आर डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो बस यहाँ से निकल जाएगा। किसी एक लिंक का अगर मुझे पता है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और मतलब वेलोसिटी पता है और डायरेक्शन पता है या फिर एंगुलर वेलोसिटी पता है, एक ही बात है, तो बाकियों की वेलोसिटीज या एंगुलर वेलोसिटीज निकाली जा सकती हैं गिवन दैट कि अगर उनका हमें डायरेक्शन पता है वेलोसिटी को। तो यही हमारा यहाँ पर भी रूल फॉलो है। अगर मैं इस लिंक सी डी को देखूँ तो इस लिंक सी डी के अलोंग मैं अगर ऐसे आईसीआर को देखूं जो इसके दोनों टर्मिनल्स से इंटरसेक्ट या पास होने वाली लाइंस के इंटरसेक्शन से बना है, तो उसी के अबाउट ये प्योर रोटेशनल कर रहा है पूरा का पूरा लिंक। तो अगर सी डी के अलोंग देखूं तो पॉइंट डी और सी से पास होने वाला एक ही आईसीआर है, एक तो नहीं मतलब और भी है, बट अभी के लिए यहाँ पर I15 है, क्योंकि देख रहा हूँ मैं I15 और सी और I15 और डी ये लिंक नंबर 5 से कनेक्टेड हैं। तो फर्दर अगर इसके अलावा कोई मिड पॉइंट भी होगा तो उसकी वेलोसिटी भी हम बता पाएंगे। तो यहाँ पॉइंट सी का बताना था, मुझे डी का पता था, सॉरी मुझे इस लिंक का ही एंगुलर वेलोसिटी पता है, हमने ओमेगा सी डी इवेलुएट किया था ना 1.949 रेडियन पर सेकंड जिसका वैल्यू आया था। तो एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, तो फिर फर्दर हम दूसरी जो वेलोसिटी निकालनी है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से। तो सी से लेकर I15 उसका एक डायरेक्शन ही मान लो उसके परपेंडिकुलर साइड में, ना डायरेक्शन ही मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा है, तो फर्दर यहाँ पर हमने जो एन मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी लिखा सी का, उसे लिखा ओमेगा 5 इंटू I15 सी। या वैसे तुम बाकी पॉइंट्स के लिए भी देख लो, अब लिंक ए बी है, यहाँ से कोई ऐसा आईसीआर ढूंढो जो इसके टर्मिनल से ही कनेक्टेड हो, जैसे कि तुम ये देख रहे हो I23 और I13 से पास होने वाला एक आईसीआर है जो कि मीट कर रहा है I13 पे, तो ये लिंक ए बी जो है 13 के बाद प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ऐसे देखो यहाँ पर सी डी के लॉन्ग भी था, तो बस मुझे पता लग गया कि ये I15 के लॉन्ग प्योर रोटेशनल मोशन करेगा। तो सिंपल होप सो आपको समझ में आया होगा। सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो बस कोई सा भी लिंक लो, देखो उसके टर्मिनल्स के थ्रू पास होने वाली जो लाइन है वो कहीं पे आईसीआर बना रही है, जो डॉट डैश्ड लाइन है, और अगर बना रही है तो वही आईसीआर के बॉर्डर पे रोटेशन मोशन करेगा, ये ट्रिक ही समझ लो। तो कैसे वीडियो थोड़ा लेंदी है, अब इसके बाद तो और कुछ खास कंटेंट है नहीं बताने के लिए इसमें। यहाँ तक कि आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, जिसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो बी कंफर्टेबल टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके से मैं अब आगे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा एंड फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस वाला बताऊंगा बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर बाय आईसीआर मेथड था। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेहरबानी करके पूरा ही देखिए, क्योंकि अब आप भी बोर हो चुके होंगे सुनते सुनते, और मैं भी बोर हो चुका हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।